friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Odisha Judicial Services 2013. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, पेपर comes like this. Year mention here. सीरीज़ ए, रोल नंबर भरना है यहाँ पर, बॉल पॉइंट पेन ब्लू और ब्लैक यूज़ कर सकते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर पर 25%. तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए इक्लिप्स भी है, कलरेबल आइसोलेशन भी है और सेवरेबिलिटी भी है, वेवर नहीं है, तो सी इसका आंसर रहेगा. Next है 2. Which one of the following is not a state under Article 12 of the Constitution? CSIR है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भुवनेश्वर है, UPSC है, बहरामपुर यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट है 3. Which fundamental right is available to citizens only? Freedom of speech and expression. C is the answer. जो 19 वाले होते हैं, आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, सी इसका आंसर रहेगा. Next is 4. Which fundamental right is available to all person? Right to form union, no. Protection of life and personal liberty, B is the answer. जो नॉन सिटीजन हैं उनके लिए ये नहीं है बिकॉज ये कहाँ दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, जैसे मैंने बताया भी लास्ट क्वेश्चन में भी, तो बी इसका आंसर रहेगा. आर्टिकल कौन सा है ये? 21. नेक्स्ट इज 5. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन? दैट इज आर्टिकल 20 का 3. C is the answer. Next 6. Which one of the following is a directive principle of state policy? Right to education कहाँ है? 21A में. Right to die is not a fundamental right. Right to move Supreme Court Article 32. Right to organize village panchayat Article 40. DPSP, D is the answer. Next 7. Which one of the following is not a DPSP? Again, Uniform Civil Code 44 में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अभी पूछा है 40 में आर्टिकल. राइट टू एजुकेशन 41A है, फ्री लीगल एड 39A, DPSP. तो इसमें आंसर क्या हो गया फिर? सी. नॉट, दिस इज अ फंडामेंटल राइट एंड नॉट DPSP. नेक्स्ट इज 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, टू डिफेंड कंट्री, रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, टू प्रमोट इंडियन कल्चर. फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पर दी हुई है? आर्टिकल 51A में. ये ऑप्शन ए, ये है क्लॉज डी, ये है क्लॉज ए. टू प्रमोट इंडियन कल्चर ये नहीं है, तो डी इसमें आंसर हो गया. नेक्स्ट 9. इन विच केस डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग वाज इवोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो वो था IC गोलकनाथ, बी इज द आंसर. Next 10. Which case is related to constitutionality of right to die? That was Gyan Kaur versus State of Punjab. B is the answer. इसमें बोला गया था it is not a fundamental right. Next 11. Preliminary decree can be passed in suit for partition, yes. Partnership, yes. Mean profits, yes. तो देखिए जो ये प्रोवाइड किया गया है ऑर्डर 20 में और पार्टीशन के लिए लिखा गया है रूल 18 में, पार्टनरशिप का है रूल 15 में, मीन प्रॉफिट का है रूल 12 में, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर हो गया. नेक्स्ट है 12. पेक्यूनियरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट हैज़ बीन डेल्ट विद सेक्शन 6, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 13. सेट ऑफ कैन बी लीगल और इक्विटेबल बोथ, सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 14. रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री इंक्लूड्स, अपील कर सकते हैं, यस कर सकते हैं. एंड अपील फॉर एक्स पार्टी डिक्री कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 96 में मेंशन किया गया है ये ऑफ CPC में ही. एप्लीकेशन फॉर सेटिंग साइड एक्स पार्टी डिक्री ये भी कर सकते हैं. इसमें देखिए ऑप्शन ठीक नहीं लगे क्योंकि अपील तो हो ही सकती है, इट इज़ अ डिक्री है, एक्स पार्टी डिक्री है.
तो आइदर अपील हो जाएगी या फिर सेटिंग साइड एक्सपायरी डिग्री हो जाएगी। तो दोनों ही इसके आंसर हो गए ए एंड सी। नेक्स्ट 15, नीमो डेविड बिस्फिस्कारी प्रो una at Adam causa means no one shall be fixed twice for one and the same cause of action. C is the answer. Next 16, in execution of decree for maintenance, salary of a person can be attached to the extent of 2/3 अटैच कर सकते हैं। सेक्शन 60 में ही ये मेंशन किया गया है CPC में। नेक्स्ट 17, अंडर सेक्शन 100 इज सेकेंड अपील लाइज टू हाई कोर्ट बट ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 18, सेक्शन 89 प्रोवाइड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय हाई कोर्ट ओनली या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और थ्रू विलेज पंचायत या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर थ्रू विलेज पंचायत या फिर आउटसाइड द कोर्ट। आउटसाइड द कोर्ट, डी इज द आंसर। Section 19, Section 115 applies only when there is an error of law या फिर judicial error. C is the answer. 2015 में किया था, रिपीट क्वेश्चन है ये, काफ़ी रिपीट क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट इज 20, if an indigent person's suit abate on the death of plaintiff under Order 33, Rule 11A, the fee payable on the plaint shall be recoverable from the estate of deceased plaintiff. A is the answer. Next 21, warrant case means a case in which a police officer cannot arrest without warrant या फिर court in which first instance issue warrant relating to an offence of imprisonment with imprisonment for a term not exceeding 2 years, death or life. D is the answer. Definition कहाँ पर है? सेक्शन 2X में। Next 22, the court of magistrate first class may pass a sentence for a maximum term of imprisonment awardable in a summary trial, that is 3 months only. कहाँ लिखा गया है ये? सेक्शन 262 के 2 में ऑफ CRPC। नेक्स्ट 23, सेक्शन अंडर CRPC फॉर ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ कहाँ पर है? 125 में। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। नेक्स्ट 24, सेक्शन 304 डील्स विद लीगल एड टू द एक्यूज्ड एज स्टेट एक्सपेंसेस। C is the answer. 25, which section of CRPC provides that a person once convicted or acquitted cannot be tried again for the same offence? That is section 300. B is the answer. Next 26, under section 39 CRPC, every person has to give information to magistrate or police officer about the commission of an offence punishable under all of the above. D is the answer. Next 27, who is given protection from arrest under section 45 CRPC? प्रोटेक्शन किसके लिए है? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28, अंडर सेक्शन 416 द हाई कोर्ट कैन पोस्टपोन कैपिटल सेंटेंस ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 29, अंडर सेक्शन 366 ऑफ CRPC द सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट। ए इसका आंसर रहेगा। और हाई कोर्ट की पावर का कन्फर्म करने की 368 में। देखिए कितना सही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ये। बाकी जगह बहुत गड़बड़ क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पूछते हैं कि कन्फर्मेशन कहाँ पर हो सकता है? हाई कोर्ट के द्वारा। तो द आंसर की विल से दैट सेक्शन 366, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। सबमिशन होता है यहाँ पर सिर्फ। नेक्स्ट 30, अंडर सेक्शन 354 CRPC द लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट शैल बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। यस। शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यस। एंड द रीजन ऑफ द डिसीजन। यस। Shall specify the offence of which and the section of IPC or other law under which accused is convicted. Yes. D इसका आंसर रहेगा। All of the above. Next 31, according to section 141 Indian Evidence Act, any question suggesting the answer which the person putting it or wishes or expects to receive is called as leading question. D is the answer। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 141 Evidence Act में। Next 32, section 115 of Indian Evidence Act deals with एस्टोपल। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 33, सेक्शन 125 इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। ए इसका आंसर रहेगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहाँ पर है? 126 में। ऑफिशियल 124 में। नेक्स्ट 34, ए विटनेस हु इज अनएबल टू स्पीक इज कॉल्ड एज अ डम विटनेस एंड एविडेंस विल बी ओरल एविडेंस। सेक्शन कौन सा है? 119। देखो 3 बातें बता दी मैंने आपको यहाँ पर।
नेक्स्ट 35 सेक्शन 75 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, डी इज द आंसर। पब्लिक डॉक्यूमेंट कितने में? 74 में। Next 36, under the provision of the Indian Evidence Act, when an accused says that he did not make confession, it is called a retracted confession. C is the answer. अब आप पूछेंगे कि भाई कन्फेशन के बारे में लिखा तो नहीं हुआ कि उसने मेक किया कि नहीं किया। देखो यहाँ लिखा हुआ ही डिड नॉट, मतलब उसने नहीं किया कन्फेशन, मतलब कोर्ट कह रहा है कि भाई तूने पहले कन्फेस किया था। तो थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ही डिड नॉट मतलब पास्ट है ना, मेक कन्फेशन, उसने पास्ट में कन्फेशन नहीं किया। कोर्ट कह रही है कि बात तूने तो कन्फेशन किया था, नो। अब वो कह रहा है कि मैंने कोई कन्फेशन नहीं किया, तो ये क्या है? ये है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, रिट्रैक्ट कर ली उसने अपनी बात। नेक्स्ट 37, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज समटाइम्स अ कंक्लूसिव प्रूफ, नो इट इज नॉट कंक्लूसिव, इट इज कोऑपरेटिव इन नेचर एंड सपोर्टिव इन नेचर। तो बोथ हो गए, डी इसका आंसर हो गया। इट इज कोऑपरेटिव एज वेल एज सपोर्टिव इन नेचर। Next 38, section 8 of Indian Evidence Act deals with conduct, motive, preparation, all of the above, D इसका आंसर रहेगा। Next 39, section 47A deals with relevance of opinion relating to electronic signature, yes, A इसका आंसर रहेगा। Rights and customs पे कौन सा है? That is 48 usage tenets वाला, 49 relationship, 50 section Evidence Act। Next 40, the term admission is defined in Indian Evidence Act in section 17. D is the answer. Next is 41. According to Dash, a crime is a violation of public rights and duties due to whole community. It is said by Sir William Blackstone. A is the answer. Next 42. Crime which do not require intention, recklessness or even negligence as to one or more element in the actus reus is known as strict liability. B is the answer. Next 43, section 304B in chapter 16 of IPC deals with dowry death. C is the answer. ये कितना है? 376। क्रूअल्टी कितने में है? 498 A में। Insult the modesty of the woman, 509. Next 44, the Honorable Supreme Court in one of the following cases held that general principle of criminal justice is that jurisdiction is determined by locality of the offence irrespective of the nationality or any similar attributes of the offender. तो स्टेटमेंट वर्सेस एल आफ्टे ये किस पर है? ये डबल जियो पार्टी पर है। जो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा था? ये कहा था मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। डी इसका आंसर रहेगा। ऐसे 45, अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस कैरीज मैंडेटरी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अ कंपनी कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, नो इट कैन बी प्रोसिक्यूटेड, ये हो गया गलत। फिर है कैन बी कन्विक्टेड, हाउ एवर कैन नॉट बी इम्प्रिजन, इट कैन बी इन प्रिजन, सेंटेंसिंग हो सकती है कंपनी की, बट उसके लिए कौन जाएगा अंदर? डायरेक्टर जाएंगे, डायरेक्टर्स कैन बी इम्प्रिजनड। तो दिस इज द प्रॉपर आंसर, डी इज द आंसर। सी भी ठीक है, ये कैन बी कन्विक्टेड एंड कैन बी फाइन, फाइन तो लगा ही सकते हैं, कंपनी भरेगी फाइन को। नेक्स्ट इज 46, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड्स एंड वेट, दिस ऑब्जर्वेशन फॉर्म्ड पार्ट ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये बोला गया था जो वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर है प्रीवी काउंसिल का, उसमें बोला गया था ये चीज़। और ये जो लाइन है एक्चुअली ये एक पोएम से ली गई है, ओह हिज ब्लाइंडनेस। किसकी पोएम है ये? जॉन मिल्टन की। तो वहाँ से ये लाइन ली गई थी उस जजमेंट में। और जो पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद है उसमें जो है इसका रेफरेंस दिया गया है वीरेंद्र कुमार घोष वाले का, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ऑन 34 कॉमन इंटेंशन। तो एग्जैक्ट ये लाइन तो यूज़ नहीं की गई थी, जो इसका अगर आप देखेंगे जजमेंट जो है उसमें एग्जैक्ट लाइन्स नहीं है, बट मीनिंग वही यूज़ किया गया है। तो डी इसका आंसर रहेगा, बाकी ये तीनों केसेस में नहीं है। नेक्स्ट 47, सेक्शन 377 आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर अननेचुरल ऑफेंसेस, डी इसका आंसर रहेगा। रॉबरी कितने में? 390 में, पब्लिक न्यूसेंस 268, थेफ्ट 378। फिर है 48, क्वी फेसेट पर एलियम फेसेट पर से होना चाहिए। द एसेंस ऑफ दी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, ही हु एक्ट्स टू अनदर एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ। तो वो है वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल, बी इसका आंसर रहेगा।
Next is 49. In which case the Honorable Supreme Court has struck down mandatory death penalty under 303, that was Mithu versus State of Punjab. D is the answer. Next 50. The two-judge bench of Honorable Supreme Court in one of the following case held that long delay by President or Governor in disposing mercy petition for convict under anti-terrorism law or similar status cannot be ground for communication of death penalty into life imprisonment. तो ये केस था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बी इज द आंसर. उस टाइम पर रिसेंट जजमेंट में पूछा गया था केस ये. नेक्स्ट 51. द इंटेंशन ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट टू गिव राइट वेयर देयर इज नन, टू इंटरपोज अ बार आफ्टर अ सर्टेन पीरियड टू ए सूट टू एनफोर्स एन एग्जिस्टिंग राइट. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. फिर बोथ ए एंड बी. यस, बोथ ए एंड बी. सी इज द आंसर. Next 52. For an account and share of profit of a dissolved partnership, the period of limitation is 3 years. So, B इसका आंसर है. अगर कहाँ मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 5 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. Next 53. The extension of prescribed period in certain cases on sufficient cause being shown for delay under section 5 is known as. तो इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सटेंशन भी अप्लाई होती है, फिर इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंडोनेशन भी है और सफिशिएंट कॉज भी है. तो ऑल ऑफ द इसका आंसर हो गया. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 54. सब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन इज डेल्ट विद. कौन सी एंट्री है, कौन सी लिस्ट है? ये एंट्री 3 ऑफ लिस्ट 3. डी इज द आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन स्केड्यूल 7 कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. नेक्स्ट 55. अंडर सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, द राइट टू एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर वे, वाटर कोर्स, यूज ऑफ वाटर और एनी अदर ईजमेंट विच हैव पीसफुली एंजॉय विदाउट इंटरप्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 30 years द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट शैल बी एब्सोल्यूट एंड इंडिफिजिबल राइट. तो 20 का आंसर रहेगा. अगर प्राइवेट रहता बिलोंग टू प्राइवेट पर्सन तो होती 20 years. बी इसका आंसर रहेगा. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये है सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. नेक्स्ट 56. द लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ ओनली व्हेन पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड. बिल्कुल ठीक है. फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट दैट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय जुडिशियल प्रोसेस. ये भी ठीक है. फिर है इफ़ अ क्लेम इज सेटिस्फाइड आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड दैट इज नॉट इलीगल. ये बिल्कुल ठीक है. इफ़ अ क्लेम इज सेटिस्फाइड आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट इज इलीगल. नो. अब दोनों में से एक ही ठीक होगा. तो ये ठीक हो गया. तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2 एंड 3. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 57. अंडर CPC द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल अपील टू हाई कोर्ट फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर इज 90 days. सी इज द आंसर. कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 116 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. लिमिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 January 1964. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 59. द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सोट विद इन 3 years फ्रॉम अ डेट फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस. तो बी इसका आंसर रहेगा. कहाँ प्रोवाइड किया गया? आर्टिकल 54 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. Next 60. Continuous running of time refers to where once time has begun to run, no subsequent liability disability to institute a suit or make application stops it. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है make to stop it. No, ये गलत है. Stop it provided the court grant. No. फिर D है where once stops it. ये हो गया wrong. ये भी. आंसर क्या रहेगा इसमें? A. कहाँ मेंशन किया गया है? ये सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. Next 61. Nemo that acquired non-habit means no one can transfer what he doesn't possess. यहाँ क्या लिखा है? One can transfer. No one can transfer. तो one cannot transfer what he doesn't possess. D इसका आंसर रहेगा. Next 62. A. Transfer the land to B with the condition that if B sold it, he must sell it to C and nobody else. The condition is, condition कैसी है? Void हो जाएगी. Section 25 लग जाएगा condition. क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर रहा है और एब्सोल्यूट नहीं हुआ फिर वो. नेक्स्ट 63. सेक्शन 52 ऑफ TPA कंटेन्स डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस. ए इज द आंसर.
पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ पर है? 53A में. इन द ग्रांट ऑफ एस्टोपल 43. Next 64, a suit to obtain a decree that a mortgage shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgage property is called as suit for. पार्ट परफॉर्मेंस तो नहीं है. फोरक्लोजर, सी इज द आंसर. इलेक्शन कितने? 35 में. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 65, for the purpose of making a gift of immovable property the transfer must be effected by delivery of possession. वो तो होना ही चाहिए. रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन बाय ऑन बिहाफ ऑफ डोनर एंड ड्यूली टेस्टेड. बट सेक्शन 123 में क्या लिखा हुआ है? बी. तो बी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? 123 ऑफ टीपीए. नेक्स्ट 66, a mortgage by deposit title deed is called as equitable mortgage. सी इज द आंसर. मोर्गेज डेफिनेशन कहाँ पर? 58 में और 58A में है एक्चुअली. मोर्गेज, मोर्गेजर, मोर्गेज की डेफिनेशन. फिर जो ये डिफरेंट मोर्गेज हैं, बी में है सिंपल मोर्गेज, सी में है फिर मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल, फिर है यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज है 58D में. फिर ई फॉर इंग्लिश मोर्गेज. मोर्गेज जो है डिपॉजिट टाइटल डीड कहाँ पर है? ये एफ में. एनोमलस जी में. Next 67, a lease of immovable property from year to year can be made by. ओरल नहीं हो सकती, सिंपल नहीं होता, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. डी इज द आंसर. और कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 107 ऑफ टीपीए में. नेक्स्ट 68, which one of the following statement is not correct in context of transfer of property? It means an act by which a living person conveys property. ये बिल्कुल ठीक है. बी है ही कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. ये से ठीक है. ही कन्वेज टू वन और अदर लिविंग पर्सन. ये भी ठीक है. फिर ही कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सनस. नहीं, ये भी कर सकता है, बिकॉज देखिए यहाँ पर हिमसेल्फ एंड वन और मोर है. उसके कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 5 में. तो ये हो गया रॉन्ग. फिर इसका आंसर क्या रहेगा? डी. रॉन्ग पूछा हुआ है. सेक्शन 5 आप देख सकते हैं इसके लिए. नेक्स्ट 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम? राइट टू क्लेम इन प्रॉफिट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. तो ए इसका आंसर रहेगा. अरियर हो गया, अर्नेस्ट रिटर्न, ये सब हैं जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं. नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ गिफ्ट मेड बाय मोहम्मदन. डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट ये होना चाहिए. एक्सेप्टेंस होना चाहिए. डिलीवरी पोजेशन होना चाहिए. गिफ्ट मस्ट बी इफेक्टेड थ्रू अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. ये ज़रूरी नहीं है. तो डी इसका आंसर हो गया, बिकॉज चैप्टर ऑफ गिफ्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू मोहम्मदन लॉ और डोनियस मोर्टिस कोजा. कहाँ लिखा हुआ है ये? सेक्शन 129 टीपीए में. नेक्स्ट 71, एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज इज कॉल्ड एज जनरल ऑफर. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 72, पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन. द सेटलमेंट इज करेक्ट. नो, इट इज नॉट करेक्ट. करेक्ट अंडर इंग्लिश लॉ या फिर करेक्ट बोथ अंडर. ये तो हो गया रॉन्ग क्योंकि इंडियन लॉ में नहीं है. नॉट करेक्ट. तो ये करेक्ट है इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ में नहीं है. तो बी इसका आंसर रहेगा. इंडिया में तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है. नेक्स्ट 73, द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल इन अ शोरूम इंडिकेटिंग देयर प्राइस अमाउंट्स टू इन्विटेशन टू एन ऑफर. सी इसका आंसर रहेगा. ग्रेट ब्रिटेन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स. केस याद है कि नहीं? नेक्स्ट 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड आफ्टर इट हैज बीन मेड. कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी नहीं कर पाएगा. फिजिकल, लीगली, प्रैक्टिकली कर पाएंगे. क्या हो जाएगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं कर सकती वॉइड इसको. तो ए इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 56 विल बी एप्लीकेबल. नेक्स्ट 75, हेडली वर्सेस बैक्सन इज रिलेटेड टू डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सी इज द आंसर. सेक्शन 73 पर है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. Next 76, MC Chaco versus State Bank of Travancore case related to preview of contract in India. B is the answer. Next 77, under Indian Contract Act, a contract of indemnity is defined in section 124. D is the answer. 126 में क्या है? Contract of guarantee. Next 78, A saves B from drowning in a river. B promises to pay 10,000 for this kind act. The contract is enforceable as it covered by exception to consideration in section 25 exception 2. So D is the answer. Past consideration is consideration in Indian law.
नेक्स्ट 79 द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स मैसूर वर्सेस विजय डोगर महारानी साहेब भावनगर इज रिलेटेड टू, यह है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 80 ए कंटिन्यूइंग गारंटी में बी रिवोक्ड बाय नोटिस टू द क्रेडिटर शॉर्ट इज डेथ, बोथ सी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये है 130 में, ये है 131 में। नेक्स्ट 81 ऑन विच डेट हिंदू सक्सेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, ये हुआ था 17 जून को, बी इज द आंसर 1956 में। नेक्स्ट 82 A dies intestate and is survived by a son of a predeceased son, half blood brother S, and a daughter of full blood predeceased sister D. How S and D will succeed the property? तो देखिए इसके लिए पता होना चाहिए आपको क्लास 2 heirs इन स्केड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर एंट्री 4 है, उसमें लिखे हुए हैं ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सन, सिस्टर सन, सिस्टर डॉटर, ब्रदर डॉटर, ठीक है। बट फिर अब देखेंगे अगर आप सेक्शन 18 तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुल ब्लड विल बी प्रेफर्ड ओवर हाफ ब्लड। तो जो फुल ब्लड वाली कौन सी सिस्टर है, अगर ये ए है तो इसके एक भाई था स्टेप ब्रदर और एक रियल सिस्टर है फुल ब्लड वाली, तो इसकी एक डॉटर है, इसका एक बेटा है। तो रियल ब्लड विल बी प्रेफर्ड, फुल ब्लड विल बी प्रेफर्ड, तो डी विल टेक द एंटायर प्रॉपर्टी, ए इज द आंसर। Next 83 the Hindu Succession Act does not have territorial jurisdiction over Renocants of Pondicherry, C is the answer। और एक कहाँ मेंशन किया गया है, स्टेट अमेंडमेंट है पौंडीचेरी की, जो कि सेक्शन 2 के नीचे ही लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला 84 है हिंदू फीमेल डब्ल्यू डाइज एंड सर्वाइव बाय हर हस्बैंड, 1 सन एंड 2 अनमैरिड डॉटर्स, हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ डब्ल्यू विल बी डिवाइडेड into 4 equal parts। इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, और उसमें क्लॉज ए में लिखा हुआ है फर्स्टली अपॉन सन, डॉटर एंड हस्बैंड, तो तीनों को मिल जाएगी, और तो इसमें 2 डॉटर होगी तो 4 लोगों में इक्वली बट जाएगी, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 85 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, मेंटल इन्फर्मिटी, फिजिकल डिफेक्ट, कन्वर्जन टू अदर रिलीजन, डिजीज। तो मेंटल इन्फर्मिटी भी नहीं हो सकती, फिजिकल डिफेक्ट भी नहीं हो सकता, डिजीज भी नहीं हो सकती। तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि विच कैन बी ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और सेक्शन 28 बात करता है कि कोई नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम सक्सेडिंग एनी प्रॉपर्टी इन द ग्राउंड ऑफ डिसीज और डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन ये ठीक नहीं हुए। फिर आपको कुछ पता लगता है तो बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। Next 86 the term codicil under Indian Succession Act relates to an instrument made in relation to a will, C is the answer। will को कराते हैं probate, और codicil क्या होता है, any amendment in the will is a codicil, तो C इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 2B ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में। Next 81 the degree of kindred are computed under Indian Succession Act in the manner set forth in the table of kindred set out in, तो कौन से स्केड्यूल में है वो, तो ये है स्केड्यूल 2 में, ए इसका आंसर रहेगा। Next 88 a legacy is bequeathed to A on condition that he shall marry with the consent of B, C and D. A marries with F without consent but obtains consent afterward, the legacy is। Next 89 a person taking no benefit directly under a will but deriving a benefit under indirectly is not put to his election has been provided under which section, this is section 184, D is the answer। Next 90 the deceased has made a specific bequest of the part of his property, the executor not having assented to the bequest shall the subject of it, the sale is valid, A is the answer। कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 307 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, एंड दिस इज इलस्ट्रेशन A। नेक्स्ट 91 अंडर सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द एसेंशियल कंडीशन अंडर विच
कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मे बी ऑर्डर्ड आर, ऑप्शन क्या है इसमें, दैट द रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल अगेंस्ट द प्लेंटिफ, ये बिल्कुल ठीक है। फिर द प्लेंटिफ हैज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सीरियस इंजरी फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज लेफ्ट आउटस्टैंडिंग, यस ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर है दैट इन व्यू ऑफ सर्कमस्टांसेस द कोर्ट कंसिडर रीजनेबल एंड नेसेसरी टू कैंसिल द डॉक्यूमेंट, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द इसका आंसर हो गया, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 92, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम by subsequent title of specific performance of the contract may be enforced under section 19b is the answer. Next 93, in a simple suit for specific performance of contract for sale, a person who is not a party to the agreement for sale is neither a necessary nor proper party. The exemption available under specific relief act are as follows: cases of novatio नहीं है, novation होगा इधर यहाँ पर, ये तो ये ठीक है। फिर इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ प्रायर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ठीक है। फिर इट नेसेसिटी टू ज्वाइन पार्टीज अवॉइडिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, यस ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94, वेयर अ पर्सन इज इन सेटल्ड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इवन ऑन द assumption दैट ही हैड नो राइट टू रिमेन ऑन द प्रॉपर्टी ही कैन नॉट बी डिस्पोजेस्ड बाय द ओनर, द रिलीफ इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 6A इज द आंसर। Next 95, a person is entitled to possession of specific immovable property may recover it by suit filed under the provision of CPC. The relief is provided in Specific Relief Act, that is section 5C is the answer. Next 96, any person having the possession or control over the article of movable property of which he is not the owner may be compelled to deliver it to the person entitled to it immediate possession. ये कहाँ पर है ये? When the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff, ये ऐसे बिल्कुल ठीक है। ये एक्चुअली है सेक्शन 8 और ये क्लॉज है D। फिर when the things claimed is held by defendant as an agent or trustee, ये क्लॉज A है, तो दोनों हो गए A and B, C is the answer. Next 97, injunction can be granted under Specific Relief Act in the protection of intellectual properties. Wife can restrain her husband from contracting a second marriage, passing off or like action, all of the above, D is the answer. Next 98, one of the following section under Specific Relief Act deals with specific performance with variations, that is section 18A is the answer. Next 99, to obtain a mandatory injunction under 39, the plaintiff must show that there has been a breach of obligation in the nature of लीगल ऑब्लिगेशन एंड द नेसेसिटी टू मेंटेन स्टेटस क्वो, तो दोनों ही हो गए, बोथ A and B, D इज द आंसर। नेक्स्ट 100, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशंस, द कोर्ट में इन अ प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट्स, अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेजिड्यू, तो ये सेक्शन कौन सा है? दैट इज सेक्शन 32B इज द आंसर। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Odisha Judicial Services 2013. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.